So today we are doing parallel lines and all the angles that are formed by those parallel lines. तो parallel line जो angles बनाती है हम उनकी properties को भी पढ़ने वाले इस वीडियो में. So let us understand by beginning by what is parallel lines. तो like for example in the diagram you have three lines, that is P, Q and R. So तीनों की तीनों lines non intersecting coplanar lines हैं. नॉन इंटरसेक्टिंग आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही है, एंड कोप्लेनर मीन्स दे आर इन अ सिंगल प्लेन. So line P, line Q and line R are all parallel to each other. So this is what you mean by parallel line. Now let us understand what is the meaning of the word transversal. Transversal क्या होता है? So now let's say you have three lines M, N and L और एक लाइन उसको बीच में से काट रही है, that's P. So P is a transversal. So a line intersecting two or more coplanar lines in a distinct point. तो जब दो या दो से ज्यादा कोप्लेनर लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है, so we call it as a transversal. Now let us understand all the angles formed by this parallel lines. Parallel lines कौन से angles बनाती है जो आपस में equivalent होते हैं. So the first angle, the very famous angle, that is the corresponding angle. So corresponding angle जो L बनता है, like for example in the diagram you can see that these two angles, the A and B, they are parallel to each other and they are forming an L. Like ये दोनों angle L बना रहे हैं, ऊपर A भी और नीचे B भी. So these two angles which are formed at the intersection of two vertices. The vertices which can be denoted by X and Y. तो X और Y पे जो rays उनको काट रही है, they are forming an angle. और वो angle parallel line में ही होते हैं और दोनों angle equivalent होते हैं. So that is the meaning of corresponding angles. Now let us understand alternate angles. As you can see in the diagram, there is a Z formation. Z बन रहा है. तो इस Z के अंदर जो दो एंगल बन रहे हैं, that is A and B, they are called alternate angles और ये दोनों एंगल भी आपस में equivalent होते हैं. और यहाँ पे भी सबसे important property है कि the line should be parallel to each other. So ये दोनों rays थी ऊपर और नीचे वाली, the both should be parallel to each other. And let us take another example in which we have two parallel lines and a transversal. तो जो एंगल डी और एंगल ई है ये बाहर की तरफ है अभी, दे आर नॉट इनसाइड दैट जेड, बिकॉज इनसाइड जेड होते तो दे वुड हैव बीन ए एंड बी. नाउ द डी एंड ई, नाउ दे आर नोन एज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, बट ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये भी इक्विवेलेंट होते हैं. सो ए एंड बी आर ऑल्सो इक्विवेलेंट and D and E are also equivalent to each other, and this is the definition of alternate angles. Now let us understand the third type of angle, that is interior angles. So what are interior angles? Now as you can see in the diagram, तो क्या बन रहा है, एक C बन रहा है. तो inside the C you have two angles. Now I have denoted them again by the letters A and B. ये होते हैं alternate angles और इसकी प्रॉपर्टी अलग है. यहाँ पे angles equivalent नहीं है, यहाँ पे दोनों का सम होता है. सम मीन्स वी एड देम एंड द सम इज सप्लीमेंट्री. द वर्ड सप्लीमेंट्री मीन्स दैट इज इट इज 180. And lastly we have two important properties related to angles. The first property is vertically opposite angle. तो अगर दो intersecting lines होती हैं तो उसमें जो दो opposite चार angles बनते हैं तो दो आपस में opposite हैं. So all the opposite angles are equivalent. They are equal to each other. एंड द फाइनल प्रॉपर्टी दैट इज लीनियर पेयर. अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन में कोई लाइन उसे इंटरसेक्ट करती है, सो वी गेट टू एंगल्स एंड अगेन दोस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम होता है 180 डिग्री. सो इन शॉर्ट वी हैव लर्न्ड 5 प्रॉपर्टीज. लेट मी रिवाइज ऑल दोस 5 प्रॉपर्टीज टू यू. द फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट अस रिवाइज फ्रॉम इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पहले 180 डिग्री को कवर कर लेते हैं. तो जो C बनता है जिसके अंदर एंगल A और एंगल B होते हैं उसे हम कहते हैं 180 डिग्री. We don't call them equal, we say that their sum is supplementary. The second property 180 डिग्री वाली थी लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन वाली जिसमें दो एंगल्स बनते हैं, that is 180 डिग्री. और जो बाकी तीन प्रॉपर्टी थी उसमें एंगल्स इक्विवेलेंट है. जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल में L बनता है तो एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स में Z बनता है एंड द एंगल्स आर इक्वल, एंड लास्टली वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं. Now let us understand all this by doing few sums. तो एक सम कर लेते हैं जिसमें we have two lines, that is RP and MS, both are parallel to each other, और एक ट्रांसफर जा रही है DK जो इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे H and G. तो जो हमारा एंगल है DHP, सिर्फ एक ही एंगल हमें दिया हुआ है, that is 85 डिग्री, और हमें तीन एंगल फाइंड करने हैं, that is ABC. So let us find angle ABC. Let's see how we can find them.
तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो 85 के साथ जो एंगल जुड़ा हुआ है दैट इज एंगल सी। तो हम सिंपली स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर लगा सकते हैं। सो एंगल सी प्लस 85 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो 180 से माइनस कर लेंगे 85, वी विल गेट 95। तो एंगल सी मिल गया दैट इज 95 डिग्रीज। एंड नाउ वी हैव एंगल ए और एंगल बी बचे हुए हैं। तो अगर आप सी और बी को देखोगे तो सी बन रहा है तो हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके भी बियॉन्ड देखोगे तो एंगल बी और 85 करस्पॉन्डिंग है, डीएचपी के साथ एंगल बी एल बना रहा है। So we can use the property of corresponding angle and we can directly say that angle B is equal to 85 degree. And lastly for angle A के लिए दो properties है। तो अगर आप B के साथ लोगे तो you can use the property of linear pair क्योंकि B मिल चुका है। So A को 180 से माइनस कर सकते हो, angle A plus angle B is 180। अगर वापस से you look beyond it, you can see that A and C are making alternate angles। और alternate angles क्या होते हैं? Equivalent। तो you can directly say that angle A is equal to 95 degree। So that is how we do the numericals when we do this chapter। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग, ट्रांसवर्सल सबको डिफाइन करना है और सारे रीजंस देने हैं, लाइक दिस इज इंटीरियर, दिस इज गिवन एंड सो ऑन। यू हैव टू गिव ऑल द रीजंस व्हेन यू आर डूइंग द सम्स। Now let me do one more difficult sum and then conclude this video for you, because after this video you are going to do all the numericals using those angles and properties। ये डायग्राम ले लेते हैं जिसमें वी हैव ए बी सी डी एन ई। एक लाइन है जिसमें ए बी और डी ई आपस में पैरेलल है। एंगल बी सी डी दिया हुआ है 50 डिग्री और एंगल सी डी ई दिया हुआ है 100 डिग्री। दो एंगल दिए हुए हैं। लेट्स से हमें एंगल बी फाइंड करना है, एंगल ए बी सी। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? तो इसे करने के लिए हमें वापस से एक पैरेलल लाइन चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डू अ कंस्ट्रक्शन और हम एफ जी बनाएंगे। सो एफ जी इज गोइंग टू बी पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो एफ जी तीनों से पैरेलल इन शॉर्ट। पैरेलल का फायदा उठाते हुए हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा लेंगे अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल की क्यों? क्योंकि जो 100 डिग्री है हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। सो एंगल ई डी जो हमारा डी एंगल था 100 डिग्री, सो दैट विल बी अल्टरनेट टू एंगल डी सी एफ। और हमारा जो एंगल सी है वो हो जाएगा 100 डिग्री बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो अभी मुझे इंटीरियर एंगल बी सी एफ भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा एंगल 100 है, छोटा एंगल 50 है। सो 100 माइनस 50 करके मुझे एंगल बी सी एफ भी मिल जाएगा 50 डिग्रीज। डन। एंड नाउ इफ यू लुक इनटू द फिगर क्लोजली, तो जो ए बी सी एफ वाला सेगमेंट है वो क्या बन रहा है? सी। और अभी हमने वीडियो में देखा था कि जो सी बनता है उसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी दैट द सम ऑफ द एंगल इज 180 सप्लीमेंट्री। 50 डिग्री प्लस एंगल बी 180 हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 50 that is 130। So that's how we did the sum। This video is brought to you by Logical Learners channel। I hope you like the video। आपको एंगल्स के बारे में समझ में आया जो पैरेलल लाइंस के साथ बनते हैं, और हमने दो सम करके भी आपको बताया कि आप उस एंगल्स को कैसे यूज करते हैं। आप बाकी न्यूमेरिकल्स कीजिए। एंड इफ यू स्टिल हैव डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स बिलो। वी विल सॉल्व इट फॉर यू एंड ब्रिंग मोर वीडियोस टू यू इंटरेस्टिंग एंड एनिमेटेड like this। And don't forget to subscribe to the channel। Thank you so much।